I'm just sharing my screen. So guys, I have shared my screen with you. Everybody is able to see my screen now? सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है गाइस? आई होप. Okay, so guys, now we will learn that how to add the products in Amazon. Amazon में listing किस तरीके से करते हैं products की, that we will be learning now. So guys, लिस्टिंग से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यूजुअली Amazon हमसे पूछता है जब भी हम लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम वो एक चीज क्लियर करेंगे बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे सेलर्स को उसके रिगार्डिंग काफी सारे डाउट्स होते हैं, सो इट इज बेटर टू क्लियर दैट. सो जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट आईडी, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट आईडी, GTIN या फिर बारकोड. दीज ऑल थ्री नेम्स आर द सेम. ये तीनों के तीनों सेम ही नाम है. प्रोडक्ट आईडी, GTIN and barcode, all three names are the same one. Okay, GTIN is Global Trade Identification Numbers. Barcode होते हैं when we usually go for the shopping part, so we see that there are some of the other barcodes that accountant is handling. ठीक है, so वो barcode ही हमें यहाँ पे ऐड करने होते हैं जिसके बिना हम अपने प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, ये तीनों नाम प्रोडक्ट आईडी, GTIN एंड बारकोड, तीनों नाम ही सेम है. कभी आपसे बारकोड के नाम से पूछ लिया जाएगा, कभी प्रोडक्ट आईडी के नाम से और कभी GTIN के नाम से. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये तीनों नाम डिफरेंट हैं. नो, दीज ऑल थ्री आर द सेम नेम्स. Okay guys, after that there are different type of barcodes. First is UPC, जिसको हम बोलते हैं Universal Product Codes. These codes are of 12 digits. ये 12 digit का कोड होता है एक, and these are particularly accepted universally. हर जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वाले कोड्स हैं. यूनिवर्सली लोग इन कोड्स को यूज करते हैं. These are universally accepted product codes, product tax codes. Clear to everyone? Is it clear to everyone? First UPC codes हैं. Second is International Standard Book Numbers, ISBNs. These are of 10 digits और 13 digits. ये बुक्स या कोई अगर आप पब्लिशर हो किसी बुक के, तो उस केस में ISBNs यूज होता है. नेक्स्ट इज यूरोपियन आर्टिकल नंबर, EANS. दे आर ऑफ 13 डिजिट्स. ये 13 डिजिट्स के कोड होते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है जापानीज आर्टिकल नंबर, Japanese आर्टिकल नंबर्स, JANS, जो 14 डिजिट्स के कोड्स होते हैं. ठीक है, मतलब 4 टाइप्स ऑफ कोड्स आर देयर, UPC, ISBNs, EAN और JAN. नाउ UPC codes are universally accepted ones. You can use in any type of different products. These codes can be used easily in any type of a different products. Okay. एंड देन आफ्टर दैट आते हैं हम लोगों के ISBNs. ये जो कोड होते हैं ये इन द केस ऑफ पब्लिशर और इफ यू आर सेलिंग सम टाइप ऑफ बुक्स, सो उस केस में ISBNs यूज होता है. देन होता है EAN एंड JAN. EAN यूज होता है इफ यू आर डीलिंग इन एनी टाइप ऑफ अ यूरोपियन ब्रांड, एंड सेम गोज विद JAN इफ यू आर डीलिंग इन एनी टाइप ऑफ अ जापानीज ब्रांड. एंड इफ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स इन यूरोपियन कंट्री और जापानीज कंट्री तो भी लोग EAN यूज करते हैं. बट many a times Indians are also using EAN just
for selling in India also, that's like totally not a problem, but yes, there is no use out of it. EAN are usually costly numbers, UPC are a little bit less expensive as compared to EAN or JAN numbers. Okay, so guys, these are the different type of codes. What's the application difference? Okay, Rajan, the application difference is basically that I have told you, like ISBN are used in the case of books. UPCs are universally accepted. Either you are selling whatever types of product, you can use UPC codes. EAN and JAN are used either you are dealing in European or Japanese brand, या फिर you are selling your products in ma'am, your voice is breaking a lot, not able to hear anything. Guys, other people are getting my voice clearly? Okay, other people are getting my voice clearly, yes or no? Okay, so अभी हम उस पे आ रहे हैं that how to buy them. I am coming on that. Okay, the people who are not getting my voice clearly can please rejoin once again. Okay, so Rajan, आपका डाउट क्लियर हुआ? द एप्लीकेशन डिफरेंस, एवरीबडी इज क्लियर विद दिस प्रोडक्ट आईडी? अभी सब लोगों से मैंने मतलब समझाया कैसे यूज करना है और क्या करना है, दैट आई एम टेलिंग इट नाउ. ठीक है, हाउ टू यूज देम, हाउ टू प्लेस देम, वेयर टू ऐड देम, दैट आई एम टेलिंग इट नाउ. सब लोग यहां तक क्लियर हैं? एवरीबडी इज क्लियर टिल दिस पॉइंट? All 4 different names under GTN. Exactly, Rajan. Okay. So now the question arises. Guys, किसी का mic on है? Please off your mic. Okay. So now the question arises that from where you will get these UPC codes or any type of barcode आपको कहां से मिलेंगे? Guys, if you are dealing in any type of a branded product like Nike, Adidas, Ellen Solly, Venusen or whatsoever can be a branded product, so that particular brand will provide you the UPC or whatsoever codes. अगर वो यूरोपियन कंपनी है तो EAN प्रोवाइड करेगी, जापानीज कंपनी है तो JAN प्रोवाइड करेगी, या फिर UPC कोड्स तो हर जगह एप्लीकेबल ही हैं. Okay, if you are dealing, guys, में cases हैं. If you want to write down these cases, your wish. First case is if you are dealing in any type of a branded item, that particular company will provide you the UPC code. Clear to everyone? Is it clear to everyone? I hope everyone will be clear with it. Okay. Next is, if you are having your brand name, if you are having the trademark with your brand name particularly, in that particular case what you have to do, you have to particularly buy the UPC codes from the third party sites. Okay, अगर आप लोगों के पास कोई ट्रेडमार्क वाला ब्रांड नेम है जिसमें आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ट्रेडमार्क ले रखा है, सो उस पर्टिकुलर केस में यू कैन बाय द यूपीसी कोड्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी साइट. ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज वन साइट, आई विल टेल यू, इट इज नेम्ड एज जेन प्रोज. इस साइट का नेम है जेन प्रोज. आई एम जस्ट शोइंग यू आउट. सो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है 250 यूपीसी EAN सर्टिफाइड बारकोड फॉर Amazon इंडिया, eBay, फ्लिपकार्ट, Amazon USA, 100% जेन्युइन. सो 500 रुपीज में 250 कोड हैं. इसके डिफरेंट डिफरेंट प्लान हैं, 50 फॉर 140. सो इस तरह से काफी सारे यूपीसी कोड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. यू कैन बाय. इस तरह से बहुत सारी साइट्स हैं. ये मैंने आपको एक साइट का नेम बताया है. इफ यू आर हैविंग द ट्रेडमार्क ऑफ योर नेम, या आपके पास कोई लोकल ब्रांड है, लोकल ब्रांड मतलब कि आपका खुद का ब्रांड है या आसपास में किसी का ब्रांड है, ठीक है, तो उस केस में आप यहां से यूपीसी कोड बाय आउट कर सकते हो. क्लियर? ये हो गया सेकेंड केस. अब सेकेंड केस के साथ ही एक और लिंक्ड केस है. अगर मेरे पास कोई ऐसा सेलर आ जाता है कि सर सॉरी आई एम नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन दीज टाइप ऑफ यूपीसी कोड्स, मैं नहीं इन्वेस्ट करना चाहता इन यूपीसी कोड्स में,
या मैं नहीं बाय करना चाहता ये बारकोड्स, बट उसके पास ट्रेडमार्क है, सो उसका भी एक सॉल्यूशन है जो आई एम टेलिंग इट नाउ. फॉर दैट गाइज वी हैव टू अप्लाई फॉर GTIN एग्जम्पशन. उसको हम बोलते हैं GTIN एग्जाम्पशन. GTIN एग्जाम्पशन दो केसेस में होता है. पहला, इफ यू आर हैविंग योर ओन ब्रांड नेम विद अ ट्रेडमार्क इफ एंड यू डोंट वांट टू बाय इट फ्रॉम other side, so आप GTIN एग्जाम्पशन के लिए you can apply it. Secondly, if you are not having any type of a brand name or any type of a trademark, in that particular case also you can apply for GTIN exemption. So for that I will go in the catalog section. As you are able to see my catalog section, the first section, and then click on add products from here. This is the first option you are getting here. So from here I'll scroll it down a little more, and in the last I am getting an option of what is a GTIN. I'll click on this option of what is GTIN. After that I will scroll it down more, okay, and then I will click on request approval. Here you are getting an option of request approval. If we are not having trademark, we want to use some name as that only I am telling guys. थोड़ा सा ना टॉपिक खत्म होने का वेट किया करो, आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है. मैं वही टॉपिक अभी करवा रही हूँ NSD ग्रुप. ओके, सो I'll click on this request approval from here. So here you have to firstly add the category. सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है? कैटेगरी ऑफ माय प्रोडक्ट. सेलेक्ट द कैटेगरी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग विद ब्यूटी प्रोडक्ट. मैं ब्यूटी को सिलेक्ट कर लूंगी. सो गाइज अब मैं यहाँ पे वो वाला केस सबसे पहले बता रही हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रेडमार्क वाला ब्रांड नेम नहीं है और मुझे अपने प्रोडक्ट्स Amazon पे सेल करने हैं, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? आई विल सिलेक्ट द कैटेगरी एंड आई विल जस्ट राइट हेयर एज जेनेरिक. अगर आपके पास कोई भी ब्रांड नेम नहीं है, कोई भी ट्रेडमार्क नहीं है, तो आप उस केस में जेनेरिक वर्ड का यूज करोगे एंड जस्ट क्लिक ऑन चेक फॉर एलिजिबिलिटी. ठीक है, now we have landed it here on check for eligibility page. So here they are saying that after 30 minutes you can add your product in this particular category. Okay, ये था एक केस अगर मेरे पास ट्रेडमार्क वाला ब्रांड नेम नहीं है तो. अब मैं एक केस बताऊंगी अगर आपके पास ब्रांड नेम है, उस पर ट्रेडमार्क भी है, बट आप यूपीसी कोड बाय नहीं करना चाहते. उस केस में आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है. दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज Amazon ब्रांड रजिस्ट्री ऑफ इंडिया. Amazon ब्रांड रजिस्ट्री इंडिया. यहां पे आपको अपना ब्रांड जो है वो रजिस्टर करवाना होगा, तभी आप अपने ब्रांड नेम से GTIN एग्जम्पशन ले पाओगे. सो आप जो यहाँ पे अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाओगे तो उस केस में दे विल आस्क यू फॉर द पर्टिकुलरली फॉर योर ट्रेडमार्क नंबर. ठीक है, आपके GST सर्टिफिकेट एंड सिंपल बिजनेस डिटेल्स दे विल आस्क. नथिंग एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड हियर ब्रांड रजिस्ट्री के लिए. ओके, सो यहाँ पे आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करना होगा. विद इन 48 आवर्स और 72 आवर्स देयर आर चांसेस कि आपका जो ब्रांड है वो अप्रूव हो जाए. ठीक है, देयर आर चांसेस कि आपका ब्रांड जो है वो अप्रूव हो जाए. ओके, आफ्टर दैट ये लेने के बाद अप्रूवल जब ले लिया, 48 आवर्स के बाद जब अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, सेम ऑन द बैक ऑन दिस पेज, गो हियर एंड सिलेक्ट योर कैटेगरी. यहाँ पे आप अपना नेम ऐड करोगे, जैसे जो भी आपका ब्रांड जिसपे आपने अप्रूवल लिया है, दैट विल बी ब्यूटी कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल आई एम सिलेक्टिंग, सो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ब्यूटी केयर. यहाँ पे एक मैंने रैंडम ब्रांड नेम ले लिया एंड आई क्लिक ऑन चेक फॉर एलिजिबिलिटी. ओके, यहाँ पे एक स्टेटस इज ग्रीन टिक. यहाँ पे स्टेटस हमेशा ग्रीन टिक होना चाहिए. अगर स्टेटस ग्रीन टिक नहीं है, सो गाइज
मतलब आपको ब्रांड अप्रूवल लेने की जरूरत है इस ब्रांड पे. इस ब्रांड पे ऑलरेडी ब्रांड अप्रूवल है, इसलिए ग्रीन टिक आ रहा है. नाउ आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू टू सबमिट प्रूफ. Guys, here they will ask you for the product images with the proper packaging and labeling on it. यहाँ पे वो आपसे proper packaging और labeling वाली images मांगेंगे for your own brand and product. And here you have to upload those images and your product name here. After that you have to just click on submit the request and your product will get and your product and the brand name will get the approval for GTIN exemption. Is everybody clear with all the cases of GTIN exemption or may I repeat them? सारे cases GTIN exemption के clear हो गए, yes or no? Guys, first case is if you are dealing in any type of a branded product. First case, if you are dealing in any type of a branded product, that particular brand will provide you the UPC code or whatsoever the codes are. Second, if you are particularly dealing with your own brand, you are having your own trademark for your brand, so in that case you can buy the UPC codes from the third party sites. If you don't want to buy the UPC code, then you have to apply for the Amazon brand registry part, and then you can take the GTIN exemption from that particular brand name. And after that, if you are not having any type of a brand name or a trademark, then you can just write generic and you can go for your product listing. That's it. How can we apply for bulk exemption as it is difficult to do individually? Devanshu, whenever you are applying for the GTIN exemption here, so see, here is an option of add more categories in both the things, add more brand and add more categories. In the down, just see there are two options, add more categories and add more brands. Okay. If we don't have trademark for any brand but we want to use that brand name instead of generic, no, you cannot. Now it is compulsory that your brand should have the trademark, then only you will be able to sell your products with that particular brand name. Okay, Devanshu, your doubt is clear. Gaurav, everybody is clear with these GTIN exemption part? Yes, exactly, Rajan. It will be inclusive of digital books. Any flat file like there is for listing? Devanshu, that is for the listing part. We are on the GTIN exemption. अभी हम listing पे आएंगे, so we will understand that. Okay. Everybody is clear till here. अगर किसी को कोई भी doubts है, so I am waiting for your doubts, guys. I'm waiting for your doubts. If you are having any doubt, just write your doubt. If you're not having, just write yes at least. For brand registry, we have to submit images of logo on product or packages. Sometimes they ask if your brand is not unique, then they will like ask. If your brand is unique, they will not ask. ओके मतलब यूजुअली क्या होता है, अगर सेम नाम से मैं भी अप्रूवल ले रही हूँ अमेजोन से, उस पर्टिकुलर केस में यूजुअली क्या होता है कि दे विल चेक कि ठीक है आपका लोगो और उसका लोगो मैच होता है या नहीं होता. यस मैम, आई वांटेड लाइक 100 प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पशन. हाउ विल गाइज, आप इस केस में 100 प्रोडक्ट्स 100 देवांशु एक चीज समझो, जो एग्जाम्पशन है ना वो कैटेगरी पे है, प्रोडक्ट में नहीं है. ब्यूटी में आपके 100 क्या 1000 प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं. ठीक है, ब्यूटी में आपके पास 100 नहीं 1000 प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं. सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर अप्लाइंग. इतनी तो कैटेगरीज नहीं है, 100 तो कैटेगरीज नहीं है, यहाँ पे 10 to 15 तो कैटेगरीज हैं सिर्फ जिसमें आपको अप्रूवल लेना है.
if you apply for exemption, okay, but how to get barcode? Rajan, in that particular case, if you will get the GTI and exemption, you don't have to fill the barcode at that particular point. You don't have to fill it. You just can leave it blank. Guys, clear हुआ? Any other doubts? I'm waiting. अगर doubts हैं तो please पूछ लो. Clear it out. गाइज अगर क्लियर हो गया तो यस लिख दो, अगर डाउट्स हैं तो पूछ लो, सो दैट वी कैन मूव फर्दर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस करके आपको बता रही हूँ. सारे केसेस ध्यान से समझ लेना. 3 से 4 केसेस हैं गाइज इसके. ओके, so now we are moving further to add the products. Can we change the category of brand registry? NSD group is asking, can we change the category of brand registry? You cannot change the category of brand registry, but whenever you are applying for the brand registry part, so you can add many categories there. It's not like that you have to just go with the one category. You can add 2 or 3 categories there, like more than that also. Okay, so आप ऐसा तो है नहीं कि अगर एक ब्रांड बनाया तो यूजुअली हम लोग क्या होता है कि ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील नहीं करते हैं विद अ पर्टिकुलर ब्रांड. सो इफ यू थिंक कि आप ज्यादा प्रोडक्ट्स में, या यू कैन ऐड आफ्टरवर्ड्स, बट यस यू कैन नॉट रिमूव दैट. चेंज नहीं कर सकते, ऐड ऑन कर सकते हो. ओके, सो मूविंग फर्दर. Now we will learn that how to add products. बिल्कुल ध्यान से, what is the maximum number of categories and brands? 10 and 10. एक बारी में आप 10 categories और 10 brands के लिए approval ले सकते हो. Rajan, and one time you can take the approval of 10 categories and 10 brands. Okay. So guys, now I will tell you that how you have to add your products. जस्ट सी इट वेरी वेरी केयरफुली. कैसे ऐड करते हैं एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना. आई विल क्लिक ऑन द कैटलॉग. ओके, फ्रॉम हेयर फर्स्टली वी हैव टू क्लिक ऑन कैटलॉग. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट्स का. आई विल क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेयर. आफ्टर दैट वी विल स्क्रॉल इट डाउन अ लिटिल बिट. थोड़ा बहुत स्क्रॉल डाउन करेंगे. ठीक है, आफ्टर स्क्रॉलिंग इट डाउन, यहाँ पे हम लोगों के पास एक ऑप्शन है एडिंग प्रोडक्ट्स, एंड आई विल क्लिक हियर ऑन एडिंग प्रोडक्ट्स. आफ्टर दैट I will scroll it down यहाँ से and I'll click on create a new product listing. And from here I have to select one category for my products. So I will select beauty, and beauty में हम randomly कुछ भी like fragrances and deodorants and roll-ons will select. So guys, this is a page where I have to add my product, but उससे पहले I want to ask one thing from you guys. एक second, I just show you something that you can see here. मैंने रैंडमली एक और कैटेगरी सिलेक्ट करी है इस पेज में. ये जो पेज आप अपने सामने देख रहे हो, ये है बेबी एक्टिविटी एंड प्ले टाइम एंड एक्टिविटी सेंटर्स का.
सेकेंड पेज है यहाँ पे ब्यूटी, फ्रेग्रेंस एंड डिओड्रेंट्स एंड रोल ऑन। इस वाले पेज में जो अभी आपको दिख रहा है, और जो अब मैं दोबारा ध्यान से देखो पहले इस पेज को फॉर 1 सेकेंड, जस्ट सी इट वेरी केयरफुली। नाउ आई एम स्विचिंग ऑन द नेक्स्ट पेज। ये वाले पेज में और दूसरे वाले पेज में क्या डिफरेंस है? What is the difference that you are able to see here and in product ID? क्या डिफरेंस है प्रोडक्ट आईडी का? एग्जैक्टली गाइस, यहां पे प्रोडक्ट आईडी इज इन रेड, और यहां पे जो है मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी हेयर टू फिल. Why is it so? Yeah, exactly, because we have taken the GTIN exemption for this particular category. That's why they are not asking for product ID in this section, in this category, and in this category they are asking for the product ID. सब लोगों को ये चीज क्लियर हो गई? प्रोडक्ट आईडी इज मैंडेटरी टू हैव, या तो प्रोडक्ट फिल करो या फिर GTIN एग्जाम्पशन फिल, या फिर GTIN एग्जाम्पशन ले लो. ठीक है. सो गाइज नाउ आई विल एड माई प्रोडक्ट. तो अभी मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगी, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी का सेक्शन है. अभी हमने GTIN एग्जाम्पशन ले लिया तो हमें प्रोडक्ट आईडी फिल करने की जरूरत नहीं है. सो वी विल जस्ट स्किप इट एंड आगे चलेंगे प्रोडक्ट नेम पे. प्रोडक्ट नेम क्या होता है ये समझते हैं. फॉर दैट आई विल ओपन amazon.in. I have opened amazon.in and here I will search for deodorant, क्योंकि मैंने भी वहां पर deodorant ही सिलेक्ट किया है. So I have selected one deodorant here. Okay. Then after that इस डिओड्रेंट में टाइटल लिखा हुआ है निविया मेन डिओड्रेंट फ्रेश एक्टिव ओरिजिनल 150 ml. ठीक है. अब मैं आपको बताऊंगी कि डिओड्रेंट लिखने का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट में आपको अपना टाइटल लिखना चाहिए. व्हाट इज एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द टाइटल. जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट, आई विल ओपन माय नोटपैड गाइस. ओके. सो टाइटल लिखने का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप लिखोगे ब्रांड नेम, उसके बाद आप लिखोगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सॉरी उसके बाद लिखोगे प्रोडक्ट नेम, उसके बाद लिखोगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आफ्टर दैट यू विल राइट कलर वेरिएशन, उसके बाद लिखोगे साइज वेरिएशन. ये जो लास्ट के दो सेक्शंस हैं ये अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं. अगर आपके प्रोडक्ट में कलर वेरिएशन नहीं है, जैसे डीओ है, डीओ में तो कोई कलर वेरिएशन नहीं होता, सो यू कैन जस्ट गो विद द साइज वेरिएशन, फ्रेग्रेंस वेरिएशन. ठीक है. सो यहाँ पे अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ है निविया इज अ ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम क्या हो गया मेन डिओड्रेंट, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हुआ फ्रेश एक्टिव ओरिजिनल, साइज लिखा हुआ है इसका 150 ml. इज एवरीबडी क्लियर विद दिस पार्ट ऑफ टाइटल. और गाइस टाइटल लिखने के कुछ लिमिटेड करेक्टर्स होते हैं, उन करेक्टर्स में ही आपको अपना टाइटल लिखना चाहिए. दैट इज 200 करेक्टर्स.
This is 200 characters. You have to write the title within 200 characters only. Is it clear to everyone? ठीक है, जो टाइटल है आपका वो 200 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए. ट्राई टू ऐड द टाइटल ऑफ 200 कैरेक्टर्स. ओके, सो अभी के लिए आई एम जस्ट कॉपिंग दिस टाइटल फॉर नाउ सो दैट टाइम वेस्ट ना हो. हम लोग, मैं अभी के लिए इस टाइटल को कॉपी कर लूंगी एंड आई विल जस्ट प्लेस इट हेयर. क्लियर? मैंने ये टाइटल वाले फॉर्मेट में मैं इसे कॉपी कर दूंगी. नाउ आई हैव टू ऐड द कंट्री ऑफ ओरिजिन. कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब कहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ओरिजिनेटेड है, कहाँ का मैन्युफैक्चर्ड है. अगर मुझे पता है इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, चाइना में है, जापान में है या जर्मनी में, जिस भी XYZ कंट्री में मुझे पता है तो आई कैन ऐड इट. अगर नहीं पता तो मैं रैंडमली इंडिया का नाम लिख दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आता है गाइस ब्रांड नेम. ब्रांड नेम आपको यहाँ पे वही ब्रांड नेम लिखना है जो एक तो जिसपे ट्रेडमार्क हो, दूसरा जो Amazon ब्रांड रजिस्ट्री से अप्रूव्ड हो. अगर आप कोई भी रैंडम ब्रांड लिख दोगे जो Amazon ब्रांड रजिस्ट्री से अप्रूव्ड नहीं है, सो उस पर्टिकुलर केस में व्हाट विल हैपन दैट यू विल रिसीव एन एरर ऑफ 5665. आप लोगों को एक एरर आएगा 5665 का अगर आप यहाँ पर कोई भी रैंडम ब्रांड नेम ऐड कर दो. सो इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी जेनरिक ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी ब्रांड नेम नहीं है. Is it clear to everybody? Okay. उसके बाद आएंगे मैन्युफैक्चरर पे. अगर आपको पता है कि आपका मैन्युफैक्चरर कौन है आपके प्रोडक्ट का तो ठीक है, और अगर नहीं पता तो यू कैन राइट योर कंपनी नेम ऑल्सो. लाइक मैं यहां लिख देती हूँ देवांशु एंटरप्राइजेस. ओके, ये हो गया एक. ठीक है, सो नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर. पार्ट नंबर क्या होता है? पार्ट नंबर होता है जो हमें मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है. अगर मैन्युफैक्चरर नहीं प्रोवाइड करता तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 भी लिख दोगे तो चलेगा. रैंडम एक नंबर लिख दो. ये कस्टमर के जानने के लिए नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो एक्स्ट्रा होती है. दिस इज नॉट फॉर द कस्टमर नीड. ओके, उसके बाद सेंट नेम. ऑब्वियसली आप अपने परफ्यूम का जो सेंट है उसका बताओगे कि क्या नेम है उसका. देन टारगेट जेंडर मेल कर देते हैं. आइटम फॉर्म इंसेंटेड कर देंगे इसे, या फिर स्प्रे भी है यहाँ पे, वी कैन ऐड इट एज स्प्रे ऑल्सो, या फिर इंसेंटेड. सो मैं अभी के लिए इंसेंटेड कर दूंगी. देन आइटम टाइप नेम दे आर आस्किंग इट इज डिओड्रेंट और एंटी पर्स्पिरेंट, तो आई विल राइट डिओड्रेंट हेयर. आफ्टर दैट दे आर आस्किंग फॉर द मॉडल नेम. सो मॉडल नेम तो इसका ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं सिर्फ इसका ये वाला जो नेम है ना, फ्रेश एक्टिव ओरिजिनल, ये इसकी फ्रेग्रेंस है. सो आई विल जस्ट कॉपी इट एंड आई विल पेस्ट इट हेयर in this section. कलेक्शन लिखेंगे इसकी, समर कलेक्शन लिख देते हैं, मतलब नॉर्मल की कब कौन सी कलेक्शन है ये आपकी. सो विल जस्ट राइट समर कलेक्शन. मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट नेम में, कॉन्टैक्ट नंबर में गाइज ऑलवेज ट्राई टू ऐड द नंबर ऑफ योर seller, because many a times क्या होता है, if ever customer wants to order in bulk, so usually you will not be able to like आपका जो ऑर्डर है you will get that order, your order will not get destroyed. so उस केस में हम लोग एक सेलर का नंबर लिख देते हैं. so इसलिए यहाँ पे हम अपने सेलर का नंबर लिखेंगे so that अगर हमारे पास बल्क ऑर्डर आता है and we can accept it. आफ्टर दैट यहाँ पे हम प्रोडक्ट की डायमेंशंस लिख देंगे, हाइट, लेंथ एंड विड्थ कितनी है. That I can add it here in centimeters. PPU यूनिट होता है पर पैकेट यूनिट. एक पैकेट में आप कितनी यूनिट दे रहे हो. सो आई एम गिविंग 1 यूनिट इन 1 पैकेट एंड कैसे काउंट कर रही हूँ, आई एम जस्ट काउंटिंग इट. मतलब 1 पीस है या 2 पीस है या 3 पीस है, कितने पीसेस हैं एंड आई एम काउंटिंग इट. सो आई हैव एडेड द PPU यूनिट हेयर.
उसके बाद दे आर आस्किंग इज योर प्रोडक्ट एक्सपायरेबल, येस और नो, सो यू कैन मेंशन इट येस और नो अपने अकॉर्डिंग से. एवरीबडी इज क्लियर विद द वाइटल इन्फो पार्ट. किसी को वाइटल इन्फो में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. प्लीज यू कैन आस्क मी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन द वाइटल इन्फो. जिसको क्लियर है वो यस लिख दो, जिसको नहीं क्लियर वो अपना डाउट लिख दो. एवरीबडी इज क्लियर. ओके, सो मूविंग फर्दर गाइज, यहाँ पे वेरिएशन का सेक्शन है. वेरिएशन वाला सेक्शन मैं लास्ट में बताऊंगी जब मैं पूरा प्रोडक्ट ऐड कर लूंगी, सो इसलिए अभी मैं वेरिएशन नहीं बता रही. नाउ आई एम मूविंग ऑन ऑफर सेक्शन. ऑफर के सेक्शन में गाइज सबसे पहले हम लोगों को अपना सेलिंग प्राइस डालना है. हेयर वी हैव टू ऐड द सेलिंग प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट. मतलब हमारा प्रोडक्ट कितने का है, लाइक 199 का मेरे को सेल करना है तो मैं वो यहाँ पे ऐड कर दूंगी. देन आता है स्टॉक कीपिंग यूनिट. SKU की फुल फॉर्म है स्टॉक कीपिंग यूनिट. सो इफ यू थिंक कि आपकी जो स्टॉक कीपिंग यूनिट है दैट इज अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो ठीक है. अगर आप नहीं मेंटेन कर रहे सो उस पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलरली आप क्या कर सकते हो, आप इसे ब्लैंक छोड़ दो. ठीक है, ब्लैंक छोड़ने के बाद क्या होगा, Amazon इसको अपने आप से एक SKU प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, सो अभी SKU हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे. SKU या तो अगर अपने प्रोडक्ट, SKU की फुल फॉर्म है स्टॉक कीपिंग यूनिट. इफ यू आर मेंटेनिंग एनी टाइप ऑफ एनी SKU, so you can add it. Like normally sellers give the codes to their products. Usually we see that whenever we go for a shopping of a footwear, so they say some codes in their language, so they are maintaining that codes. So in that particular case, if you are maintaining the codes of your product, so you can add them in SKU. If you are not maintaining it, you can just skip it, कोई प्रॉब्लम नहीं है. No Rajan, you don't have to use SAP code. Okay, so next is the quantity. Quantity means how much stock of your product you are having. आपके पास कितना स्टॉक है आपके प्रोडक्ट का, that you have to add here. Okay, like I am saying that मेरे पास 100 pieces हैं, so I'll add it 100. Okay, then after that you have to add the item condition, that is also new. then उसके बाद भरना है MRP. ठीक है, MRP हमारा हमेशा, we will always be having an MRP more than the standard price. हमारा MRP हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस से ज्यादा का होगा, कभी भी स्टैंडर्ड प्राइस से कम का नहीं होगा. so in that particular case हम लोगों का जो भी स्टैंडर्ड प्राइस है वो हमारा Amazon जो MRP है उससे कम होगा, तो मैं यहाँ MRP डाल देती हूँ 349. ओके, सो ये हो गया मेरा MRP ऑफ द प्रोडक्ट. सो दिस विल बी माय MRP ऑफ द प्रोडक्ट. देन आफ्टर दैट हमें यहाँ पे ना दो चीजें दिख रही हैं, दो ऑप्शंस हैं. आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ या फिर Amazon will ship and provide the customer service. So guys, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना उसके बैक एंड पे दो ऑप्शंस आते हैं, माई सेल्फ और इजी शिपमेंट का, और सेकंड वाला नॉर्मल फुलफिलमेंट बाय Amazon है. सो हम लोगों ने इजी शिप ऑप्ट किया, इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन पे ही स्टेबल रहूंगी. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? उसके बाद ये मेरे सारे सेक्शंस में फिल कर चुकी हूँ. एवरीबॉडी इज क्लियर टिल हेयर? सब लोग यहां तक क्लियर हैं, येस और नो? ऑफर सेक्शन इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके गाइस, ऑफर, in the offer section only you will get an option to add the product
टैक्स कोड, अभी हम लोगों ने जीएसटी ऐड नहीं किया है, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एन ऑप्शन ऑफ प्रोडक्ट टैक्स कोड. इन द ऑफर सेक्शन यू गाइज विल रिसीव द सेक्शन ऑफ प्रोडक्ट टैक्स कोड दैट यू कैन ऐड हेयर. आफ्टर दैट जस्ट स्क्रॉल इट अप, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लो यहाँ से, and then we have to change, we have to go with the compliance section, and compliance में they are asking for the volume कि कितना volume है इसका, like I will add 330 millimeters जैसे हम लोग डालते हैं milliliters, yeah, so I have added it. ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे images वाले section पे. सो गाइज इमेजेस के सेक्शन में ना सबसे पहले तो ये गाइडलाइंस आ रही हैं. रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज नोट डाउन दीज गाइडलाइंस, क्योंकि ये गाइडलाइंस के रिगार्डिंग ना आपके पास एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. सो एक क्वेश्चन पर्टिकुलर है, आता ही आता है इन गाइडलाइंस से रिलेटेड. सो नोट डाउन दीज गाइडलाइंस गाइज. वॉल्यूम मीन्स कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना मतलब कितना मटेरियल है. जैसे मैं डीओ कह रही हूं तो कितना डीओ है, हम कहते हैं ना 250 ml है या 350 ml है, दैट इज वॉल्यूम. राजन, ओके. प्लीज नोट इट डाउन गाइस. सब लोग प्लीज ये नोट डाउन कर लो, आई रिक्वेस्ट यू. सब लोग ये गाइडलाइंस नोट डाउन कर लो. जब आप ये गाइडलाइंस नोट डाउन कर लोगे सो जस्ट राइट डन इन द चैट बॉक्स. You will surely receive one question out of it. पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है. आई एम वेटिंग कि सब लोग प्लीज इसे नोट डाउन कर लो. ओके, सो आई होप सब लोगों ने लिख लिया गाइस. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दीज गाइडलाइंस हाउ टू compress the image. Compress up, there Rajan, there are different softwares through which you can compress your image. Photoshop से कर लो compress. There are many softwares जहाँ से आप compress कर सकते हो. Okay, so they are the external softwares, not Amazon is providing any type of a software for compressing the image. So first point is product must fill at least 85% of the image. आपके product image जो है उसमें at least 80 to 85% of the product clearly visible होना चाहिए. किसी भी तरीके की extra accessories, props या फिर logos या watermarks should not be used in that particular product, and किसी भी तरीके का टेक्स्ट एडेड नहीं होना चाहिए. इफ यू थिंक
that text is important for the customers that you have to add it here. So what you can do कि आपकी जो थर्ड या फोर्थ इमेज हो उसमें आप टेक्स्ट ऐड कर देना. Don't try to add the text in the main image. Okay, then main image should have a white pure background, किसी भी तरीके की drawing या illustration ना हो. Okay, then images must not exceed images must be at least 1000 pixel on the longest side and at least जो 500 लिखा है ना गाइस उसको कट करके आप भी 1000 लिख लो बिकॉज वो चेंज हो गया है. एंड एटलीस्ट 1000 पिक्सल ऑन द शॉर्टेस्ट साइड टू बी जूमेबल. ठीक है, ये साइज है जो Amazon ने दिया है इटसेल्फ. Amazon must not exceed 10,000 पिक्सल ऑन द लॉन्गेस्ट साइड. 10,000 पिक्सल से ज्यादा बड़ी इमेज नहीं होनी चाहिए. JPG is a preferred image format, but you can use TIFF or GIF. Always try to use JPG image, but yes, you can use the TIFF and GIF files also. Is it clear to everybody? Is it clear to everybody, guys? सब लोगों को ये clear है? I hope everybody is clear with these guidelines. Okay, PNG image also you can use. Pixels of the product can be, yeah, pixels of the product depends on you. This is a basic size they are giving. Minimum size is 10,000 to 1000 to 1000 pixel. Okay, 1000 to 1000 pixel is the minimum size, and if your image is more than that, that also you can use it. Is there any maximum pixel? No. For the shortest side, there is no type of a maximum pixel they are giving, Rajan, till now. Okay. Okay, guys. So moving further, मैम फोटो कहाँ से शूट करवाएंगे? फोन से शूट कर लो या एक कैमरा ले लो या फोटोग्राफर से शूट करवा लो. फोन से भी शूट हो जाती है वैसे तो. आजकल आप जहां से प्रोडक्ट्स खरीदते हो वो भी आपको फोटोग्राफ्स दे देते हैं प्रोडक्ट की. कोई ऐसा इशू नहीं है. दे यूजुअली गिव यू द फोटोग्राफ्स ऑल्सो. ओके, सो गाइस जितना सेक्शन मैंने अभी तक बताया टिल नाउ वेयर आई हैव टोल्ड यू इज द इम्पोर्टेंट वन. ये सारा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था. इसमें से आप कुछ भी स्किप नहीं करोगे. यू हैव टू ऐड एवरी सिंगल पॉइंट हेयर. सारा कुछ यहाँ तक फिल करना है. अब जो सेक्शन आई एम टेलिंग यू नाउ, आई विल बी टेलिंग यू द सेक्शन ऑफ एडवांस व्यू. दिस इज नॉट द कंपल्सरी वन, बट येस दिस इज गुड टू हैव. अगर आपके प्रोडक्ट्स में ये सेक्शन एडेड है सो उस पर्टिकुलर केस में देयर आर चांसेस फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर प्रोडक्ट. आपके प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से होगी उस पर्टिकुलर केस में. सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस एडवांस व्यू सेक्शन. I will enable it and यहाँ पे 3 sections और आ गए हैं. डिस्क्रिप्शन firstly we will understand that what is description. so जो मेरा Nivea वाला प्रोडक्ट है जो मैंने ओपन किया था, here only I will show you the description. ओके गाइज, ये इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसका प्रोडक्ट का, जो आपको दिख रहा है नीचे ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. दिस इज नोन एज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. ठीक है, जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है गाइज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलरली आपको जो डालना है वो सबसे पहले आप ब्रांड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो एंड ट्राई टू ऐड योर मेन कीवर्ड्स इन दैट. अपने मेन कीवर्ड्स डालने की कोशिश करो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में. जब भी आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करो, ट्राई टू ऐड द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ब्रांड. देन आफ्टर दैट try to add the then after that you have to add the description of your product with the proper keywords in it.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे हैव रिटन Nivea Men Fresh Active Original, a deodorant for men that keeps you feeling fresh all day long, long day needs, long lasting, like they are telling all the features and every type of keywords, they are using it in their description. So you can also make the description something like this. So you can firstly explain your brand little bit with 1 or 2 lines, and after that you can move forward with particularly with your product description part. Okay, so for now I am just copying it, but you don't have to copy it. मैं copy कर रही हूँ अभी वहां पर सिर्फ show करने के लिए, आप लोगों को copy out नहीं करना है इसे. I will just copy it here. After that यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास और है की प्रोडक्ट फीचर्स का. गाइज व्हाट आर की प्रोडक्ट फीचर्स, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे. हम निविया वाले पेज पे हैं एंड वी विल मूव फर्दर. यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट दिस आइटम फॉर्म स्प्रे द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ रिलायबल डिओड्रेंट प्रोटेक्शन एंड निविया केयर स्किन कंपेटिबिलिटी डर्मेटोलॉजिकली अप्रूव्ड. ठीक है, सो ये है इसके बुलेट पॉइंट्स. दीज आर द बुलेट पॉइंट्स. यू कैन ऐड मोर बुलेट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट्स, वट एवर योर प्रोडक्ट्स यू आर हैविंग. सो वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो अपने बुलेट पॉइंट्स को. दैट्स टोटली नॉट एन इशू. सो फॉर नाउ आई एम जस्ट कॉपिंग इट. एक पॉइंट में कॉपी करके 1 या 2 पॉइंट में आपको दिखा देती हूँ. So add more, click करेंगे, your points will be added, and try to add the keywords in these points also. Add more. Do we have a maximum word count? Not till yet. इतना बड़ा भी नहीं लिखना. की प्रोडक्ट फीचर्स मीन्स itself means that some small features whichever your product is having. So it's not like that you have to add a full-fledged paragraph here. You just have to add a small points. Okay, so guys, everybody is clear with the product description and key product features, I hope. गाइस सब लोगों को ये इतना पोर्शन क्लियर है? Yes or no? Everybody is clear till here? Okay. So now moving down, यहाँ पे options हैं legal description का, legal disclaimer का, sorry. So legal disclaimer guys आपका हर product में नहीं होता है. लीगल डिस्क्लेमर अगर आपका मतलब आपको लगता है कि आपके इस प्रोडक्ट के लिए रेलेवेंट है. फॉर एग्जांपल निविया ने डाला हुआ है लीगल डिस्क्लेमर, निविया फ्रेश एक्टिव ओरिजिनल 48 आवर्स डिओड्रेंट 150 ml. दिस इज नॉट अ लीगल डिस्क्लेमर. लीगल डिस्क्लेमर इज यूजुअली लाइक दैट योर प्रोडक्ट इज नॉट गुड फॉर किड्स, इट इज हार्मफुल फॉर किड्स, इट इज यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप. सो अगर इस तरह से कुछ है, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ लीगल डिस्क्लेमर है, तो आप एड ऑन कर सकते हो. इफ यू थिंक इट इज नॉट हैविंग, सो यू कैन जस्ट स्किप इट, नॉट एन इशू, कोई कंपल्शन नहीं है. उसके बाद आता है CPSIA वार्निंग, कस्टमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेफ्टी एक्ट के अंडर अगर कोई वार्निंग आपको लगती है तो है, सो आप फिल कर सकते हो. अगर नहीं है सो यू कैन स्किप इट. CPSIA वार्निंग में ये भी आता है, चोकिंग हैजार्ड इज अ मार्बल कंटेन्स स्मॉल मैग्नेट्स, चोकिंग हैजार्ड इज अ स्मॉल बॉल, चोकिंग हैजार्ड बलून, नो वार्निंग एप्लीकेबल, चोकिंग हैजार्ड स्मॉल पार्ट. सो इस तरह से अगर कुछ है सो आप फिल आउट कर सकते हो, वरना नो वार्निंग एप्लीकेबल भी फिल आउट कर सकते हो. Is it clear to everybody? Description part is clear to everybody? Yes or no guys? Two things which are important are the product description and the key product features. It is Consumer Protection Safety something like Instruction Act, कुछ इस तरह से इसकी फुल फॉर्म. Consumer Product Safety Improvement Act. Yeah. Okay. Consumer Product Safety Improvement Act. Okay. So you can note it down. CPSIA means. Okay.
आफ्टर दैट वी विल गो ऑन द कीवर्ड सेक्शन. सो गाइस कीवर्ड्स क्या होते हैं? हमारे प्रोडक्ट से रिलेवेंट वर्ड जो कस्टमर सर्च करता है. अब आप कीवर्ड्स कैसे सर्च आउट करोगे? Amazon पे जाओ, जस्ट गो ऑन Amazon, सिंपली गो ऑन द होम पेज ऑफ Amazon. So after going here you just have to write down your keyword. main keyword आप लिखो, जैसे है deodorant. So अभी इसके नीचे देखो relevant keywords आ रहे हैं. deodorant for men combo offer, deodorant for men combo, deodorant roll on for men. So इस तरह से if you add different keywords here on the search bar you will get different search results related to your product. ठीक है. सो ये अपने आप कीवर्ड्स आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो. दिस विल हेल्प यू अलॉट बिकॉज दीज आर द रिकमेंडेड कीवर्ड्स विच आर गिवन बाय Amazon itself. Okay, so randomly you can add your keywords like deodorant for men. उसके बाद हम लिख सकते हैं men's deodorant. सो इस तरह से यू कैन ऐड योर कीवर्ड. सो गाइस कीवर्ड्स का जो लिमिट है दैट इज अप्रॉक्स 200 कैरेक्टर्स. टिल नाउ आई हैव एडेड 20 कीवर्ड्स. सो एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है. बट अगर मतलब आप 20 कीवर्ड्स तो ऐड ऑन कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन ऐड द 20 कीवर्ड्स हियर. ओके, you can add on your 20 keywords still here. Then उसके बाद आता है target audience, which is your target audience. Is it men, boys, gents, whosoever the target audience is, you can add it. After that you have to add the extra type of attributes keywords like color display feature, microphone. So these are the totally extra features. Sometimes these are not relevant for your product, so you guys can skip it. If you think how many keywords, Rajan, it's not keywords. I'm saying 200 characters is the limit. So it can be within 10 keywords. It can be within 20 keywords. So till 20 keywords I have added. So मेरी 200 characters की limit नहीं हुई थी till that. 200 characters की limit है guys उसमें. So मैंने 20 keywords तक add करा हुआ है. अभी तक मेरे मतलब 200 characters नहीं होते हैं usually मेरे साथ. तो अगर आप लोगों के साथ हो जाते हैं so I can't say anything. ओके, सो आफ्टर दैट ये बिल्कुल एक्स्ट्रा फीचर्स हैं आपके प्रोडक्ट के. लाइक MP3 फीचर ऑब्वियसली डीओ में नहीं होगा, वायरलेस फीचर नहीं होगा, ट्रैवल के लिए यूज हो सकता है. यस, यू कैन ऐड इट. ओके, व्हाई यू हैव टू रिपीट द सेम कीवर्ड गाइस? कीवर्ड स्टफिंग मत करना, इट विल इफेक्ट द रैंकिंग ऑफ योर प्रोडक्ट. ठीक है. देन उसके बाद यहाँ पे और एक्स्ट्रा फीचर्स दे आर आस्किंग लाइक विंटर के लिए, समर के लिए है आपका प्रोडक्ट. सो आई लाइक समर हियर. इंटेंडेड यूज, बिजनेस गिफ्ट्स के, एंटरटेनमेंट, ऑटोमोबाइल्स, मिनी साइज, पोर्टेबल, ट्रैवल. सो दीज आर टोटली द एक्स्ट्रा फीचर्स दे आर आस्किंग. इफ यू थिंक दे आर रेलिवेंट फॉर योर प्रोडक्ट यू कैन ऐड इट, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप ऑन इट. ओके, so keywords सब लोगों को क्लियर हो गए. the main part is this search terms. this keyword part is main, other are the extra things. Okay, so after that we will move forward on the more details section. So guys, in the more details section you have to add the packet weight, shipping weight, catalog number if you are having. यहाँ पे कोई भी चीज कंपल्सरी नहीं है. जितनी चीजें आपको पता हैं आप फिल आउट कर दो बिकॉज दिस इज टोटली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. जैसे इंग्रेडिएंट्स पूछेंगे, स्पेशलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, यूसेज, कैसे यूज करते हैं, रिकमेंडेड एज फॉर योर प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये इसीलिए यूज होता है. अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीजें पता है, इफ यू नो ऑल द थिंग्स यू कैन फिल इट. इफ यू थिंक यू डोंट नो इट यू कैन जस्ट स्किप ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव. आई होप everybody is clear that how to add a product. Everybody is clear that how you have to add your products. Okay, so I will just click on save and finish from here and my product is added. It will take some time. So guys, अभी हम लोगों के प्रोडक्ट एडिशन वाले में दो चीजें और रह गई हैं. दैट इज बल्क अपलोडिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड वेरिएशन सेक्शन. सो जो वेरिएशन सेक्शन और प्रोडक्ट अपलोडिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू बिकॉज इस प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो उसकी वजह से वेरिएशंस
नहीं हो पाएगा आज. सो वी विल डू द वेरिएशन पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. सो टिल द नेक्स्ट क्लास मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों की रिकॉर्डिंग ऑफ योर क्लास कहाँ से मिलेगी. फ्रॉम वेयर यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ योर क्लास, प्लीज सी वेरी केयरफुली. जहां तक पहले मुझे ये बताओ, जहां तक आज मैंने करवाया एवरीबडी इज क्लियर? जहां तक मैंने आज करवाया है वहां तक सब लोग क्लियर हैं? हाउ टू क्रिएट द अकाउंट, डॉक्यूमेंटेशन, इजी शिपमेंट, फीस, एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट, सब कुछ, एवरीथिंग. ओके, so now I will tell you that from where you will get the recordings of your class. Okay, so for that you have to open your emails that you have received after the completion of the payment of this ATES. जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो गई है, so उस केस में आपके पास एक ईमेल आई होगी जिसमें एक लिंक होगा कुछ इस तरह से ielevate.school network का. so आप इट्स अ लाइफ टाइम एक्सेस एग्जैक्टली. सो यहाँ पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एड ऑन कर देना. यू हैव टू एड ऑन योर यूजर नेम एंड पासवर्ड हेयर. ठीक है, सो यू कैन जस्ट एड ऑन योर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड जस्ट क्लिक ऑन लॉग इन फ्रॉम हेयर. Want to know how to put shipping for a particular product. NSD ग्रुप, अब हमारा आने वाला प्रोडक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, जो मैंने अभी ऐड किया है, जो वो प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा. आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू कि वो शिपिंग मैनेज इन्वेंट्री में आके किस तरह से करते हैं. ओके, सो गाइज ये आपका इस तरह से एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा. आफ्टर दैट यू हैव टू गो इन द कोर्सेज सेक्शन. ये कोर्सेज वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे एंड यू विल क्लिक ऑन माय कोर्सेज. ओके राहुल, मैं पे आउट बता देती हूँ. मैं माय कोर्सेज वाले सेक्शन पे जाऊंगी. आफ्टर लैंडिंग हेयर ऑन द माय कोर्सेज सेक्शन आई विल सर्च फॉर ATES. आई विल अप्लाई इट. सबसे ऊपर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा Amazon ATES, जो आप लोगों को दिख रहा है. So I'll click on this Amazon ATES and then I will click on open the course. ठीक है, मैं इस ओपन कोर्स पे क्लिक करूंगी ग्रीन बटन पे. ये मेरा एक सेक्शन खुल जाएगा. यहाँ पे ये PDF है जहां से मैं पढ़ा रही हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है Amazon ATES PDF. You guys can refer to this PDF. उसके बाद scroll it down a little bit. यहाँ से हम scroll down करेंगे. बिल्कुल एंड में आज की डेट से आप लोगों की रिकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड हो जाएगी. एट द एंड यू विल बी एबल टू सी योर रिकॉर्डिंग विद टुडेज डेट पार्ट. बोलो मैम, रिकॉर्डिंग थोड़ा फास्ट हो सकती है 1.5x, जैसे कि स्पीड थोड़ा दिखना हो. नहीं नहीं नहीं, आप फॉरवर्ड करके देख सकते हो. ओके, सो गाइज यहाँ पे आप लोगों को रिकॉर्डिंग दिखेगी बाय टुडेज डेट. ठीक है, आज की डेट से यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी. ओके, बाय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यहाँ पे लिखा होगा, क्योंकि पार्ट 1 विल बी द बिफोर ब्रेक एंड पार्ट 2 विल बी द आफ्टर ब्रेक. शारदा, आपको ये iElevate का पोर्टल आपके ईमेल पे आया होगा, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, वहां से आपको एक्सेस करना है. यू विल क्लिक ऑन इट एंड आप वहां से देख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस लाइव ट्रेनिंग, इज देयर एनी प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज? यस राजन, देयर आर प्री रिकॉर्डेड मेनी कोर्सेज, मेनी सब्जेक्ट्स. यहाँ पे iElevate के रिगार्डिंग भी आप लोग यहाँ पे देखोगे. यहाँ पे ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड कुछ वीडियोज हैं प्री रिकॉर्डेड, जो आप देख सकते हो. ओके, today's recording will be uploaded either by today evening or by tomorrow morning. ओके, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, हम लोग अभी ये रिकॉर्डिंग बनाते हैं, उसके बाद रेंडर वगैरह करने में इट यूजुअली टेक्स टाइम. सो इस वजह से इज दिस ऑन ATES? यस राजन, ये ATES के ही सारे टॉपिक्स हैं जो प्री रिकॉर्डेड हैं. ओके, so you can refer on it. Guys, the people who didn't have any type of any email or link, so they can call to the counselor. जिनसे भी आपकी in starting बात हुई थी, you can call them and they will let you know. Okay.
Guys, the people who didn't have received the mails yet, वो पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं, वो अपने काउंसलर्स को कॉल करके, मैम मुझे पेमेंट के बाद कोई, गाइस जिन भी लोगों को नहीं मिला है वो अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं एक बारी पे आउट वाला सेक्शन में भी, राहुल वाज अ पर्सन जिसको क्लियर नहीं था। राहुल, पे आउट में आज सच कुछ नहीं है। पे आउट में ये है कि जब भी आप किसी सेलर को लॉन्च करोगे तो किस बेसिस पे आपको पेमेंट Amazon देगा, ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मैम ये जैसे मान लो मैंने किसी सेलर को एड ऑन करा, उसकी मान लो कि 2 महीने में उसकी सेल हो गई 5 लाख रुपए की। ओके, तो मैम जैसे मेरा 75 आ गया मान लो एक बारी, हाँ। फिर नेक्स्ट उसके 2 मंथ या 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ जो भी नेक्स्ट मंथ उसके निकलेंगे, उसमें मान लो फिर वो 5 से 10 लाख की बीच की एक सेलर पे सेल कर एक रहा है, बार तो पैसे फिर मिलेंगे, एक सेलर पे एक बार पैसे मिलेंगे, बार बार पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो फिर उसका मतलब कि फिर उससे हमारा कोई लिंक नहीं रहेगा, मतलब जैसे हमने उसको ऐड ऑन आप कर दिया उसे तो वो अपने मंथली बेसिस पे प्रोडक्ट मतलब पेमेंट कि ले सकते हो। Amazon आपको कोई पेमेंट नहीं देगा उस पे बार बार, सिर्फ एक बार ही देगा। एग्जैक्टली। ओके गाइज नेक्स्ट सेशन दोबारा अनाउंस कर रही हूं, नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन Tuesday at 3 to 6 p.m. on the date 12th January 2021. Ma'am, video 4 and 5 are not working, what he asked. ये एक सेकेंड गाइस, सबसे पहले तो आप लोग म्यूट कर लो अपने आप को, तभी मैं आगे कंटिन्यू करवा पाऊंगी। ये क्या है मैम, वीडियो 4 and 5 आर नॉट वर्किंग, विच वीडियोज आर नॉट वर्किंग? गाइस आपकी तो अभी तक कुछ सेशन ही मतलब स्टार्ट आज हुआ है, तो आप वीडियो कौन सी देख रहे हो? प्री रिकॉर्डेड मे भी हो सकता है, कोई सर्वर इशू, आई डोंट नो, बट हाँ यूजुअली सारी वीडियोस चल रही होती हैं गाइस। थैंक यू राजन। जस्ट चेक कि सारी ना रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो चलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती, मेनी अ टाइम्स सर्वर इशू तो कई बार वो हो जाता है। ओके गाइस, वीडियो प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड इमेज गाइडलाइंस, या हो सकता है चल जाएगी, थोड़ी देर तक दोबारा चेक कर लेना। ओके, यू कैन चेक इट अगेन आफ्टर सम टाइम, इट विल स्टार्ट वर्किंग। कई बार हम लोग सर्वर पे काम कर रहे होते हैं, कैन बी डाउनलोड दोज वीडियोज? नो, यू कैन नॉट। Thank you Gaurav. Thank you guys, thank you for the session. Please be on time on Tuesday. ठीक है, Tuesday 3 to 6 guys, सब लोग प्लीज मेरा नंबर लिख लो। Everybody please write down my number so that if you are having any problem in joining the class or whatsoever, so you can refer to me 9211074477। टेल अबाउट पे आउट, पे आउट के बारे में बता दिया ना सिर्फ मैंने, आई हैव टोल्ड इन एडवांस, सबसे पहले मैंने पे आउट ही डिस्कस किया था। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन द पे आउट, सो जस्ट सी द रिकॉर्डेड सेशन। अगर तब भी डाउट रहता है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल क्लियर इट आउट। ओके, सो गाइज यू कैन राइट डाउन माई फोन नंबर एंड देन like you can ask me if you are having any doubt or anything. Okay, thank you everyone, thank you so much. Thank you guys. 9211074477 is my number. Okay, thank you Jitinder, thank you everyone. हेलो Yes, मैम, ये आपके नंबर मिल नहीं रहे। तो व्हाट्सएप पे कर दो ना मुझे,
जस्ट तो व्हाट्सएप पे अवेलेबल है? हाँ, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।